Hello students, welcome back for session number 4 in Career Ki Baatein, and today we are diving in careers in commerce. So I hope you all have seen my last video in which I spoke about what a child can do after 10th standard if he or she doesn't want to apply for 11th, 12th in any of the disciplines. So today we are specifically talking about careers in commerce. That means we are assuming two things. Student has appeared for 10th exam. After 10th, the child has taken 11th, 12th commerce. 12th commerce is also completed, and now they are looking for higher education after 12th commerce. Okay, I have also introduced in another video which is separate about subjects who should do commerce, science, humanities. That video is also there in the playlist. Go and watch that before we dive in deep with careers in commerce. So let us begin, students, what a child can do in higher studies after completing 12th commerce. Now after 12th commerce, child can start preparing for professional courses like CA. Okay, now this requires about 5 years of dedication, wherein you have to give CA foundation, then intermediary, then you have to do articleship, and then finally you have to give a CA final examination. You can also apply your further studies and become company secretary. Uska apna ek path hai. You can apply for normal graduation programs like bachelor's in business administration, which is BBA. A child can also join a call center if there is a demanding situation. You can join a call center. You can also do a graduation program known as BCA or BArc. Now these two fields are little different for commerce students. Why? Like BCA is a normal graduation program. Now normal graduation, what I mean to say that every graduation program requires at least 3 years. Okay, so here after 12th commerce, like BBA, BCA, they require 3 years, but BArc require 5 years. Another important thing what you must remember, that if you are willing to do BCA or BArc after 12th, अभी से डिसाइड करना है. जब 10th के बाद हम 11th 12th कर रहे हैं, अगर आगे जाके BCA या BArc करना है तो फिर 12th में मैथ और इंग्लिश कंपलसरी है. यू कैन नॉट ऑप्ट आउट ऑफ मैथमेटिक्स. नहीं तो कई बच्चे कॉमर्स जब लेते हैं तो मैथ को ऑप्ट आउट करके SP सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ले लेते हैं, लेकिन उन बच्चों को जिनको आगे जाके BCA या BArc करना है तो उनके लिए मैथ और इंग्लिश बेटा कंपलसरी है इन 12th कॉमर्स. अच्छा, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम कर सकते हैं डिप्लोमा इन एजुकेशन. इसके अलावा हम कर सकते हैं BCom. BCom again will require 3 years, wherein diploma in education will require 2 years. Okay, ना मान लेते हैं हमने BCom कर लिया. BCom करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? हम MBA की तैयारी कर सकते हैं, चाहे BCom किया हो या BBA किया हो या किसी और भी ग्रेजुएशन प्रोग्राम में किया हो. हम उसके बाद मास्टर्स के लिए MBA कर सकते हैं गाइज. उसके अलावा हम LLB के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वकील बन सकते हैं. ठीक है, या तो फिर हम CMA का कोर्स कर सकते हैं. इन सारे कोर्सेज को लगभग 2 साल लगते हैं. अब जैसे ये तो मास्टर्स का प्रोग्राम है, लेकिन LLB बैचलर्स का प्रोग्राम है, तो LLB के बाद मास्टर्स अगर करना है तो फिर हम 2 साल और देके LLM का कोर्स कर सकते हैं. तो यहां पे हमारा मास्टर्स हो जाता है. अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बैंक के, इंश्योरेंस प्रोबेशनरी के, डेवलपमेंट ऑफिसर के, ये सारे एग्जाम्स भी हम दे सकते हैं 12th कॉमर्स के बाद स्टूडेंट्स. और क्या कर सकते हैं? हम कुछ टेक्निकल जॉब्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे MCM का कोर्स है, ठीक है, जो 2 साल का है. MCA का कोर्स है, जैसे हमने यहाँ पे BCA किया है ना, उसके साथ हम बाद में यहाँ पे MCA कर सकते हैं, जिसको 3 साल लगते हैं. ये दोनों कोर्स अगर तुमने कवर अप कर लिए या कंप्लीट कर लिए, इन दोनों में से कोई भी, तो देन यू कैन अप्लाई इन द सॉफ्टवेयर कंपनीज. ठीक है, जहां पे इंजीनियर वगैरह सब अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास है कॉमर्स के बाद. बहुत ध्यान से समझने वाली बातें कर रहा हूं मैं. अच्छा, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिप्लोमा कर सकते हैं. हम बात कर सकते हैं कंप्यूटर कोर्सेज लाइक टैली. छोटे मोटे कोर्सेज करके हम कहीं ना कहीं छोटा मोटा जॉब स्टार्ट कर सकते हैं. और क्या कर सकते हैं? सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, MPSC UPSC एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, IAS ऑफिसर बन सकते हैं, क्लास 1 ऑफिसर बन सकते हैं, और हम इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, सो वी कैन ज्वाइन इंडियन मिलिट्री अकेडमी, बट फॉर आर्मी वी कैन नॉट अप्लाई फॉर नेवल फोर्सेस और एयर फोर्स. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके लिए फिर वहां पे फिजिक्स चाहिए. ठीक है, तो कॉमर्स
में हम वहां पे नहीं अप्लाई कर सकते, बट डेफिनेटली हम आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा हम बीएड कर सकते हैं। अब यहां पर क्योंकि हमने ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसके बाद हम बीएड कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हम बीएड कर रहे हैं, या तो फिर हम बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस कर रहे हैं, तो फिर इसको 1 साल लगता है गाइस। और बीएड के बाद आगे हम एमएड भी कर सकते हैं, ठीक है, और उसको और 1 साल लगेगा स्टूडेंट्स। तो आई होप ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आई, कॉमर्स के बाद हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। रुको, और भी कुछ हैं। अब इन कोर्सेज के अलावा कुछ और भी इन डिमांड कोर्सेज हैं जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स हैं 3-3 साल के, ठीक है। वो कौन कौन से देख लेते हैं। वो है, देखो, एक तो है बीएचएम का कोर्स, होटल मैनेजमेंट का। उसके अलावा हम कर सकते हैं बीएमएम, हम कर सकते हैं बीएमएस, हम कर सकते हैं बीएफएम, हम कर सकते हैं बैफ का कोर्स, हम कर सकते हैं बीबीएस का कोर्स। ये काफी सारे मैनेजमेंट स्टडीज, बिजनेस स्टडीज, फाइनेंशियल मार्केट, अकाउंट एंड फाइनेंस, इन सब की स्टडी हो रही है। ये होटल मैनेजमेंट का, जैसे मैंने बताया, ये सारे जो है आजकल स्टूडेंट्स जो है काफी ऑप्ट कर रहे हैं। एक यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट बहुत ही अपकमिंग फील्ड है, आजकल बहुत सारे बच्चे उसके लिए जा रहे हैं। फ्यूचर अभी मैंने कुछ बता नहीं सकता हूं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं 11th-12th कॉमर्स के बाद। तो यस गाइज, वो भी हमारे पास स्कोप है। तो हालांकि ये कुछ हमारे 3 साल वाले ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स हैं, कोर्सेज हैं आफ्टर 12th कॉमर्स, और ये जो बीएचएम है वो कभी कभी 3 से 4 साल लगता है गाइज उसे करने के लिए। तो आई होप तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आई। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मैं साइड हो जाता हूं, इसका एक पूरा का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया तुम लोगों ने। तो इसके अलावा भी अगर तुम्हें कुछ और जानना है तो यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद मी। किसी का पूरा फुल फॉर्म जानना है तो यू कैन गेट इन टच विद मी, ठीक है। एंड इफ यू लाइकिंग द वीडियो, लाइकिंग माई एफर्ट, करियर की बातें, है ना, करियर गाइडेंस, मोस्ट इंफॉर्मेटिव, कंसाइज छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूं, शेयर करो गाइस, सब्सक्राइब करो चैनल को, नोटिफिकेशन ऑन रखो, ताकि आगे वाले सेशंस जिसमें मैं बात करने वाला हूं करियर इन साइंस, करियर इन ह्यूमैनिटीज, उसके बारे में वो तुम्हें टाइमली मिल जाए। एंड प्लीज डू शेयर, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। दिस इज अमन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी टुडे। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।